Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is about the combination of resistors, and here the combination is series combination and parallel combination. And that topic is very easy, but here we have to do some numericals related to series combination and parallel combination. So, dear students, I am writing here combination of resistors. Combination of resistance लिखो और resistances. And combination of resistances is of two types. एक टाइप है यहाँ बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज ग्रुपिंग, and second type that I discuss here, that is parallel grouping. But dear students, first of all that I am going to discuss here is series combination, and after that I will take here what is parallel grouping. See dear students, आप देखते जाएगा बेटा क्या है यहाँ. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ resistors? Why we do this series combination? If we need in a circuit a large resistance, a large value of resistance, but in our disposal और हमारे पास लो रेजिस्टेंसेस है, लो वैल्यू की रेजिस्टेंसेस है, तो हम इनको सीरीज में कनेक्ट करके एक लार्ज रेजिस्टेंस बनाएंगे. दैट इज द एम ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. लेकिन न्यूमेरिकल्स all will be here clear by, it will be clear by here dear students, when we do the numericals they will clear why we do the series combination. See dear students, तो मैं यहाँ ऐसे करूंगा. तो series combination क्या है? Here let us this, I am taking this as R1, यहाँ R2, and here is a resistor R3. Let this point is A and this point is B. When two or more than two resistors between two points are connecting along the same path, then dear students, such a combination is known as series combination or series grouping. And here this point A is connected to the positive of the battery and B is connected to the negative of the battery. So current flows from positive to negative like this. Now see dear students, अब यहाँ क्या है? इस ग्रुपिंग में बहुत आसान है. ग्रुपिंग न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये आसान है. See this I will flow because it is flowing along the same path. It is flowing along a single path. On this path there are R1, R2 and R3 between points A and B. So the current through all these resistors will be same. Here I is constant. Why? Because it is just like a steady flow of a river along the same stream. So the same amount of water will flow along all the three resistors. That is same amount of charge per unit time will flow all same along the three resistors because they are in series. So dear students, I क्या रहेगा यहाँ constant? Now see dear. Now what is the voltage drop across this? And that is given by V1. Because some energy will be consumed here, therefore there will be potential drop, and potential drop is indicated by V1. And here in this resistor let it be V2 and here let it will be V3. तो हमको पता है फिर हम ओम्स बाय V1 किसके बराबर होता है? दैट इज IR1 and V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3 because here I is same. Because here I1 is equal to I2, हम सिंपली लिखेंगे कि I is constant here for R1, R2 and R3. V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2. Here potential different from Ohm's law. So V across R3 is IR3. See dear students. But total energy, total voltage is equal to here dear students. This V1 plus this total V is nothing between the points A and B is V1 plus V2 plus V3. Total voltage drop across the three. That is, this is total voltage. Total potential drop across the three resistances. तो बेटे किसके बराबर आएगा V? तो V लिखेंगे टोटल ऐसी. V1 है यहाँ किसके बराबर? IR1 प्लस बेटा लिखेंगे IR2, बेटा प्लस लिखेंगे IR3. वेरी इजी. लेकिन ये V टोटल है, टोटल वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. तो ये किसके बराबर है? I total is I and R net इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिखेंगे RS.
इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ बेटा I कॉमन निकलेगा, यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस I and I gets cancelled, therefore बेटा R इस किसके बराबर आएगा? R1 plus R2 plus R3. Hope you have got this. So what is the net resistance of the three resistors in series combination? That is, it is equal to sum of the three resistors, sum of the values of three resistors in that circuit when these are connected in series combination. तो R इस बेटे किसके बराबर आया? R1 plus R2 plus R3। ठीक है ना? आप देखो तमाशा क्या है इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये क्या है? So here it is simple that when length, it is just like when length of a conductor, this is suppose this is L1 having resistance R1 and this is L2 having resistance R2 and this is L3 having resistance R3. As the length is increasing, we know that R is equal to rho L by A, because when L increases, it means resistance increases. So the resistance in series combination increases. Hope you have got this. The value of this net resistance in this circuit is greater than the greatest of these, largest of these values. Hope you have got this. Now see dear students, आप क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ? तो दूसरी कॉम्बिनेशन है यहाँ, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत आसान क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? बी है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट इज वेरी सिंपल व्हेन वी कनेक्ट two or more than two resistors. Let us, this is R1, let us say this is R2, and let us say this is R3. If we connect two or more than two resistors between two points A and B along different paths, then at that time we can say that these resistances are connected in parallel combination, and this is connected to the positive of the battery, and this point, let us say this is connected to the negative of the battery. तो करंट ऐसे आएगी आई, यहाँ ये करंट ब्रांच होगी क्योंकि इट विल गेट डिवाइडेड हियर ब्रांचेड। तो यहाँ I1 लेटर से, तो मान लीजिए कि यहाँ I2 और इसमें यहाँ इस ब्रांच में I3 और यहाँ कंबाइन होगी अगेन आएगी यहाँ। देखो बेटे क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, लेकिन I लिखेंगे पहले। इस पैरेलल में क्या लिखेंगे? I1 plus I2 plus I3 because it gets branched this I. This I is the sum of this because some current goes along this direction and along this I2 along this direction and I3 along this direction. So what is the I here dear students is I1 plus I2 plus I3. तो बेटे देखिएगा यहाँ क्या है? Here let us write this first equation. Here an important parameter remains constant, that is voltage. सीरीज में I करंट कांस्टेंट रहती थी और यहाँ क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? यहाँ कांस्टेंट रहती है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। Why it remains constant? Why? Reason is simple. See dear students, potential difference between A and B. Potential difference between A and B means VB minus VA, and that is equal to work done in taking a charge coulomb, 1 coulomb from A to B. Per unit charge gives potential difference between A and B. See here, if I am taking 1 coulomb, this work done is same along all the paths, along this path, along this path, along this path. When it is same along the all paths due to conservative nature, क्योंकि इस path पर भी वही work होगी, इस पे भी वही work होगी, और along all the paths the work done will be same. When work done is same along all the paths due to conservative nature of electrostatic forces, तो बेटा potential difference between this point along this path will be same because work done is same, and along this path is same because it depends only upon the initial and final positions. Here initial and final position for all the paths is same, so that is why here V remains constant. Hope you have got this. So dear students, now what is your question? Question क्या है यहाँ? देखो बेटा, तो V जब V and that V is equal to the voltage of the battery. बैटरी की वोल्टेज के बराबर है V is same and that is equal to the voltage of the battery. तो बेटा मैं क्या लिखूंगा यहाँ?
तो आई किसके बराबर है? आई इज टोटल आई है, ये आई टोटल इस सर्किट में, आई टोटल इट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। लेकिन बेटा आपको पता है कि आई वन इज इक्वल टू वी बाई आर वन फ्रॉम ओम्स लॉ, वी बाई आर वन। तो ये आएगा आई टू वी बाई आर टू बिकॉज वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टर्स, प्लस वी बाई आर थ्री बिकॉज आई इज इक्वल टू वी बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो बेटे ये आई टोटल किसके बराबर है? ये आई टोटल इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, वो कितने हैं? वो वी है। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स इन पैरेलल, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर लिखेंगे? आरपी, दैट इज इट इज द नेट, here it is I means total current and it is equal to total voltage, that is voltage of the battery divided by total equivalent resistance of all the three resistors in series, that is R net or RP or R equivalent। और ये बेटे किसके बराबर है? V by R1 plus V by R2 plus V by R3। बेटे ये आया समझ में? हाँ, ओके, वेरी नाइस, ओके डियर, सी डियर। तो देखो बेटे क्या है, तो बेटे यहाँ V बाई आर पी में लिखूंगा बेटा, और इसी को यहाँ लिखूंगा। यहाँ कॉमन क्या आएगा बेटा? यहाँ कॉमन आएगा V, और यहाँ बेटा क्या रहेगा? यहाँ 1 बाई आर वन, डेट स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, और ये V और V कैंसिल, तो देयरफॉर 1 बाई आर पी किसके बराबर आएगा? 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3, सॉरी 1 by R1 plus, I am very sorry, in fact it is R2, और ये क्या है? 1 by R3। So this is the resistance, equivalent resistance of the three resistors in parallel combination. That is the reciprocal of the total resistance in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistors. Okay, you have got this। अब हम कुछ यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे। सी बेटा यहाँ क्या, ये क्या है? what is the, why we do this? See, मैंने कहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए, और सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं कि रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ाने के लिए। इट सेम इज नॉट अवेलेबल टू अस। सी डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या है? जस्ट लाइक दिस, अगर R1 लेंगे, एक लेंगे वन कंडक्टर ऑफ लेंथ L1 हैविंग R1, और दूसरा लेंगे यहाँ L2 हैविंग रेजिस्टेंस R2, पहले की लेंथ L1 और दूसरी की L2, और तीसरा लेंगे यहाँ, मान लीजिए कि ये L2 इसकी लेंथ है और इसकी R3। तो ये किस में आते हैं? ये तीनों का अगर इनको हम वाइंड करेंगे, इन तीनों को वाइंड करेंगे तीनों को, तो क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, और वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जब जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, तो resistance decreases, thus the net resistance in the circuit decreases, same as that, like this। Okay dear students, now I am doing some numericals related to this। देखो बेटा क्या है, very easy। अब इसको कैसे याद, क्योंकि आपको आरपी 1 बाई आरपी नहीं निकालना है, आरपी निकालने कैसे याद रखोगे इसको? अगर 3 है, देखो बेटा याद रखो, आरपी डायरेक्ट याद रखो आप ऐसे, R1 R2 R3 याद रखो। हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स। आरपी याद रखो, R1 ये लिखो R1 R2 R3, और डिवाइड में लिखो बेटा R1 इंटू R2 प्लस लिखो R2 इंटू R3, और प्लस लिखो बेटा R3 इंटू R1। ये हो गई नेट के लिए शॉर्टकट। तो दो के लिए क्या होगी? अगर खाली दो रेजिस्टेंसेस होंगी, एक रेजिस्टेंस बेटा ये दिस इज R1 और बेटा ये R2, और इन दोनों के लिए क्या, इफ दे आर इन पैरेलल, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे आरपी इस वक्त पैरेलल में दो के लिए, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये जबानी दो के लिए क्या आएगा? ये आएगा बेटा, आपको पता है कि 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। लेकिन जब हम इसको इसके साथ ज़रा करेंगे, इसको इसके साथ ज़रा करेंगे, तो ये बेटा आएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। लेकिन जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R। लेकिन आप ये याद करो, ये क्योंकि आपको न्यूमेरिकल के लिए ये नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल के लिए बेटा ये नहीं लिखना है, आपको न्यूमेरिकल के लिए ये याद करना है। डायरेक्टली ये याद रखो, इससे थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। देखो बेटा, आप क्वेश्चन करेंगे,
लेट्स टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल करेंगे, यहां न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ाएंगे आपकी। देखो बेटा कैसे, सी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां लूंगा एक रजिस्टर ऐसे, सी डियर स्टूडेंट्स ऐसे, और दूसरा ले लिया ऐसे और ऐसे, ये दोनों किसमें है, यहां आई है करंट, और मान लीजिए कि ये R1 है और ये R2 है और यहां आई जा रही है। तो इस रजिस्टर में लेट से करंट इज I1 एंड इसमें कितनी है I2। देखो तमाशा। अब क्या है बेटे यहां, क्योंकि पैरेलल में क्या है, पैरेलल में V रिमेन्स कांस्टेंट, तो व्हाट इज V along across this resistor, that is I1 R1, and what is voltage across this, because voltage remains constant, so voltage across this is equal to voltage across this, but voltage is equal to I into R, तो यहाँ I1 R1, तो बेटे यहाँ क्या है I2 R2, ये याद रखना। now यहाँ क्या मिलेगा, here dear students I1 by I2 is equal to R2 by R1। देखो क्या है, याद रखो, the current is divided across the parallel combination according to the inverse ratio of the resistance। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ करंट कम जाएगी, अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ करंट कम जाएगी, अगर कम रेजिस्टेंस है तो करंट ज्यादा जाएगी। क्यों, I1 by I2, the ratio of currents are divided, the currents are divided across the parallel combination according to the inverse ratio of the resistors R1 by, क्योंकि यहाँ I1 यहाँ R1 इनवर्स, यहाँ I2 यहाँ R2, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ ज्यादा है तो करंट कम जाएगी, अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम है लेकिन करंट ज्यादा जाएगी, लेकिन किस रेशियो में, I1 by I2 is equal to R2 by R1, ये याद रखो। Let us take it as first। Now another thing here is I is equal to I1 plus I2, ये भी याद रखो। टोटल करंट I किसके बराबर है, I1 plus I2। Now question is find I1, I have to find I1 in terms of I, what is question, question is find I1 in terms of I is total current but I1 is current across R1, तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा आसान है ये। सी डियर स्टूडेंट्स, अब यहां निकालेंगे I1 के लिए हम I2 मालूम करेंगे यहां, तो बता बेटा इस इक्वेशन में I2 किसके बराबर आएगा, I2 R2, सिर्फ यहां I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, तो I2 किसके बराबर आएगा, I2 आएगा बराबर I1 R1 डिवाइडेड बाय R2। तो इसकी लिखो यहां डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखो इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड लिखो यहां, और इसकी लिखो सेकंड, substitute third in second for I2 and I will get here I1 in terms of I। See dear student, substitute करो थर्ड किसमें करो, इन सेकंड में करो, तो क्या मिलेगा आपको, सी डियर, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन मानते हैं। सबस्टिट्यूट थर्ड इन सेकंड, थर्ड को किसमें सबस्टिट्यूट करो बेटा, सेकंड में करो सबस्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा आपको, I is equal to I1 प्लस, अब इस I2 के बदले ये लिखो I1 R1 डिवाइडेड बाय R2, तो बेटे ये किसके बराबर आएगा, I1 निकालना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड I1 इन टर्म्स ऑफ I, तो यहाँ अगर I ऐसे भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम, ऐसे लिखो, यहाँ I1 ऐसे लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये कैसे मिलेगा आपको, यहाँ ऐसे लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये ऐसी लिखो, टोटल I लिखो, ऐसी I लिखो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बदले क्या लिखेंगे बेटा, आप I2 के बदले क्या लिखेंगे, I1 R1 डिवाइडेड बाय R2, देखो क्या है, अब क्या आएगा, देखो तो यहां क्या आएगा बेटा, मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बदले क्या लिखा, I2 के बदले मैंने बेटा लिखा यहां I1 R1 डिवाइडेड बाय R2, देखो क्या है, अब 1 इज इक्वल टू यहां I1 कॉमन, और यहां क्या 1 प्लस यहां बचा बेटा R1 बाय R2, तो ये किसके बराबर आएगा, सी डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देयरफॉर यहां आएगा बेटा, ये हमें ये I है, I किसके, I1 निकालना है,
तो ये किसके बराबर, आई आएगा बराबर I1 ऐसे लिखो इनटू इसको इसके साथ जरा और इसको, तो ये क्या आएगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 नो प्रॉब्लम, तो डिवाइड में आएगा R2। तो देयरफॉर ये I1 किसके बराबर आएगा, I1 ये यहां ऊपर जाएगा और यहां नीचे जाएगा, तो लिखेंगे I पहले लिखेंगे R2 बाय ये ऊपर और ये नीचे जाएगा, R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2 नो प्रॉब्लम, और इंटू क्या आएगा इंटू I, ये याद रखो, ये याद रखो, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल इक्वेशन। ये I1 किसके बराबर आया, दिस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा इनटू I इज टोटल करंट। सिमिलरली यहां ये I2 किसके बराबर आएगी, सिमिलरली ये I2 किसके बराबर आएगी, सिमिलरली I2 करंट थ्रू दिस किसके बराबर आएगी, यहां R2 लिखा लेकिन यहां बेटा ये R1 लिखो पहले R1, लेकिन डिवाइड करो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू यहां क्या लिखो I इज टोटल, तो ये I2 आ गई इन टर्म्स ऑफ I एंड दिस इज I1 इन टर्म्स ऑफ I। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशंस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशंस। सी डियर स्टूडेंट से जबानी याद रखो बेटा, क्या जबानी याद रखो, क्या जबानी याद रखो, देखो क्या जबानी याद रखें आप, इसको मेमोराइज करो, ये ऐसे देखो, अगर एक रेजिस्टेंस ये है और ये है दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, तो यहाँ करंट है I और यहाँ करंट I1 जा रहे हैं और यहाँ करंट I2 जा रहे हैं, और ये R1 है और ये R2 है और यहाँ करंट है I। तो आप इस I1 किसके बराबर, जबानी याद रखो I1 निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लेना, यहाँ पहले ये ले लो R2, डिवाइड क्या करो R1 प्लस R2, फिर क्या जरब करो, मल्टीप्लाई किससे करो आप I से, ये देगा आपको I1। तो सिमिलरली क्या देगा I2 आपको, I2 के लिए क्या, I2 निकालने के लिए क्या करोगे, पहले क्या लिखोगे आप R1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे R1 प्लस R2 इनटू करो यहाँ I, ये जबानी याद रखो, वेरी ब्यूटीफुल। अब न्यूमेरिकल करेंगे ना, थोड़ा यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे, देखो बेटा सी डियर, अगर यहां न्यूमेरिकल करेंगे एक बेस्ड ऑन दिस, अब न्यूमेरिकल आप क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे यहां डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल क्या है, अगर यहां करंट 10 एम्पियर है और यहां ऐसे यहां 2 ओम्स है और यहां 3 ओम्स है और यहां करंट आ रही है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर आ रही है, और यहां जा रही है, यहां तो 10 जा रही है क्योंकि यहां से जो ऐड होगी ये करंट, लेट यहां है I1 और यहां क्या है I2। फाइंड देन इफ, अगर ये क्वेश्चन है फाइंड क्या मालूम करो, फाइंड I1 एंड दूसरा क्या मालूम करो I2। कैसे आप निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है ना यहाँ, बहुत आसान है। इस टफ क्वेश्चन को इजी बना दिया, इजी बनेगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला बेटर मेमोराइज करोगे तो देखो तमाशा। सी डियर किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा यहां सीधे लिखो ना I1 किसके बराबर है, नाउ सोल्यूशन इज लाइक दिस। तो ये I1 किसके बराबर आएगा, I1 ये लिखो पहले, क्या I1 आपको पता है कि R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू I इज टोटल करंट दैट इज कमिंग। तो सीधे लिखेंगे बेटा, आप क्या लिखेंगे, R2 के बदले क्या 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 R1 इज 2 प्लस R2 इज 3 इंटू I कितनी आ रही है 10, तो कितना आएगा ये 3/5 इंटू 10, और ये बेटा आएगा 5 1 5 2 10, तो कितनी 6 एम्पियर। तो कितना है ये I1, कितना है ये I1, ये I1 आया 6 एम्पियर। तो नेचुरल सी बात है कि अगर यहाँ 6 एम्पियर है, 10 में से 6 एम्पियर यहाँ गई, तो यहाँ कितने आएंगे, यहाँ कितने जाएंगे 4, लेकिन यहाँ निकालेंगे ना 4 आएगा हमको, वी आर कंफर्म्ड अबाउट दिस दैट हियर इन दिस ब्रांच द करंट विल बी ऑफ 4 ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर्स। लेकिन यहाँ निकालेंगे ना फार्मूला से, इससे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि सही है। तो देयरफॉर I2 क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे बेटा हम J2 रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इनटू I कितनी है 10, ये आएगी 2/5 इनटू 10, 5 1 5 2 10 2 2 4 आ गई ना बेटा 10 एम्पियर। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ बेटा, देखो बेटा क्या करेंगे क्वेश्चन, यहाँ देखो तमाशा। सी डियर वन मोर क्वेश्चन हियर, अगर हम
यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे, एक आसान सा क्वेश्चन लिखेंगे, एक आसान सा क्वेश्चन। अगर बेटा मैं ऐसे करूंगा, यहाँ रेजिस्टेंस ऐसी और यहाँ रेजिस्टेंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ करंट आ रहे हैं यही 10 एम्पियर, यही 10 एम्पियर, और ये R1 है, यहाँ R1 हियर इज 5 ohms, और यहाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ करंट जाएगी जितनी आएगी ना टोटल में यहाँ, तो वही 10। फाइंड ये R1 है, यहाँ R2 है, R2 रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो निकालनी है करंट ही निकाल, सॉरी हमें क्या निकालना है, R2 यहाँ 0 है ना, R2 0, लेकिन यहाँ करंट I1 है, यहाँ कितनी जाएगी I2, देन फाइंड क्या मालूम करना है, देन फाइंड I1 एंड I2, दिस इज क्वेश्चन। क्या करेंगे यहाँ, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप डियर, यहाँ क्या करोगे, वही बात, वही फार्मूला जो हमने आपको बताई। तो सॉल्यूशन इसका देखो, क्वेश्चन क्या है, यहाँ 10 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2, ये I1 और I2 मालूम करना है। यहाँ इस रजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 5 ohms है, और इस रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, 0 है, तो यहाँ आके 10 एम्पियर जाती है, लेकिन हमको मालूम करना है I1 एंड I2। अब आसान सा क्वेश्चन है नहीं, सी डियर स्टूडेंट, इज वेरी इजी। तो सोल्यूशन इसका कैसे आएगा, वही पुरानी वाली बात, ये I1 किसके बराबर है, I1 इट इज R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I इज दिस करंट, तो आ गई ना I1 किसके बराबर, R2 कितने हैं, R2 यहाँ 0 है, तो ये R1 प्लस R2 कितने हैं, 0 प्लस 5 दैट इज 5, I कितने हैं, दैट इज 10, लेकिन ये 10 0 0 0 बाई दिस, ये 0 आ गई, तो क्या आ गई I1 क्या आ गई 0, तो कोई करंट नहीं जा रही यहाँ, कुछ भी करंट नहीं, तो सारी करंट यहाँ, तो यहाँ कितनी जाएगी 10, आप मालूम करो, यहाँ मालूम करेंगे सारी की सारी करंट कहाँ जा रही है यहाँ, लेकिन देखो तमाशा आप कैसे निकालेंगे, देखो ये I2 किसके बराबर है, I2 मैंने कहा ना I2, यहाँ ये R1 देखो, R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू यहाँ देखो I, तो बेटा R1 कितने हैं, R1 हियर इज 5, लेकिन ये R1 कितना है, ये अगेन 5 है, प्लस लेकिन R2 कितने हैं, 0 है, इंटू I कितने हैं, I 10, तो ये किसके बराबर आएगी, 5 बाई 5 इंटू 10, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया 10 एम्पियर। तो कितनी करंट जा रही है यहाँ, ये I2 कितना है, कितनी करंट जा रही है I2 कितनी, 10, वो भी सारी करंट है यहाँ, क्योंकि यहाँ इतना रेजिस्टेंस है, यहाँ इतना रुकावट है कि कुछ भी नहीं जा रहे, बिकॉज यहाँ कुछ भी रेजिस्टेंस, सारी की सारी करंट यहाँ जा रही है, because the currents are divided according to the inverse ratio of their resistances। जब रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं तो सारी करंट यहाँ आ रही है। Okay, you have got it fine. Now next question here is like this. Okay, you have got this. तो बेटा ऐसी क्वेश्चन बनाओ और ऐसी करो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए करो, कोई खास बात नहीं इसमें, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो क्या है तमाशा, कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा ऐसे है, देखो क्या है, सपोज आपको ये रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होती है ना बेटा, ऐसी यहां रेजिस्टेंस है ऐसी, सपोज ये R है, इसका भी वैल्यू R है और इसका भी वैल्यू R है, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कितनी होगी। ये तो बेटा सीरीज में है, लेकिन जब सीरीज को ऐड करके इनको ये और ये किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में आएगा आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये। तो इसका सोल्यूशन कैसे है, सोल्यूशन क्या आएगा, पहले आप क्या करो, ऐसे करो, ये R और R कितने आएंगे, 2R बिकॉज दे आर इन सीरीज, और ये R इसकी किस में आता है, ये R इसके पैरेलल में आता है, तो ये कौन सा पॉइंट है B, ये कौन सा पॉइंट है A, देयरफॉर व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगी, दीज आर इन पैरेलल, मैंने कहा ना कि नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल RP, सीधे इसको इसके साथ जरा R1 इंटू 2R, डायरेक्ट फार्मूला लगाना, डायरेक्ट तरीका, एंड R प्लस 2R इज R प्लस 2R, तो ये किसके बराबर आएगा, 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R, तो एक R और एक R कैंसिल, तो ये कितना आया, 2/3R इज दिस आंसर। Hope you have got this. This is very simple, but you have to do the questions like this. देखो बेटे इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा इसको पहचानने की कोशिश करो कि ये किस में है। Now simple problem here is like this. अगर ऐसे है कुछ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे है ना नेटवर्क, और ये पॉइंट है A और ये कौन सा पॉइंट है बेटा B, अगर यहां से यहां तक ऐसी है यहां तक, और यहां से यहां तक ऐसी है, इसका वैल्यू है R, इसका भी वैल्यू है R, इसका भी वैल्यू है R, बताएं। इफ क्वेश्चन इज लाइक फाइंड
resistance between points A and B, equivalent resistance of the circuit. पहले ये सोच लो बेटा, ये लगता है किसमें सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल में है। यही तो खास बात है, कोई चीज दिखता एक है लेकिन होता कुछ और है। देखो क्या है, क्या है यहाँ, ये लगता है सीरीज में नहीं है, क्योंकि बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस रेजिस्टर्स आर नॉट कनेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, दे आर कनेक्टेड इन डिफरेंट पाथ्स। हाउ? देखो क्या है, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। देखो क्या है, थोड़ा समझ लो यहाँ। अगर इस R2 की बात करेंगे, ये R2 किसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है? ये A के साथ, ये टर्मिनल R का ये, और इस R का ये टर्मिनल भी, इस R का ये टर्मिनल मान लीजिए 1 है, और इसका भी ये क्या है 1, और इसका भी ये क्या है 1, दे आर कनेक्टेड। दिस ये वाला और ये वाला एक ही पॉइंट से, तो यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट ऐसे, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन, ये R1 है, ये A के साथ है यहाँ R1, ये किसके साथ है? ये टर्मिनल R1 का A के साथ, ये इस R का ये टर्मिनल किसके साथ है? A के साथ, ये है R2, इसका टर्मिनल A के साथ, ये R है ना, ये R, इसका भी ये टर्मिनल किसके साथ है? इस R का, इस R का भी ये इसके साथ है। अब बचा कौन सा टर्मिनल? यहाँ ये 1 ले लिया, 1 किसके साथ कनेक्ट है? A के साथ। अब इनका 0 मान लीजिए, 0 नहीं, 0 समझाने के लिए है, तो 0 किसके साथ इनका कनेक्ट है? ये 0 इस R का किसके साथ है? B के साथ, यहां ले लो B। ये इसका किसके साथ है? ये इसका किसके साथ है? B के साथ। और इस R का 0 ये भी किसके साथ है? B, ये दूसरा वाला, ये भी B के साथ। और इसका ये 0 किसके साथ? इस B के साथ, तो पहले का ये 0 के साथ। एंड दैट इज व्हाट कॉम्बिनेशन हियर डियर स्टूडेंट्स, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट ये भी R के बराबर और ये भी किसके बराबर? R, और ये किसके बराबर? R। तो बता सीधे क्या सॉल्यूशन कैसे लिखे? मैंने आपको कहा था ना कि RP डायरेक्ट लगाओ, ये मत लिखो कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, नहीं, आप डायरेक्ट लिखो RP इज इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो डायरेक्ट लगा दो डायरेक्ट। तो किसके बराबर आएगा? देखो किसके बराबर आएगा, ये आएगा, ये RP किसके बराबर आएगा? RP देखो डियर स्टूडेंट्स, ये R1 R सेम है, तो R इंटू R, तो नीचे क्या आएगा? R² प्लस R² प्लस R², तो बेटे ये आएगा R³ और नीचे आएगा 2R², तो एक R और एक R कैंसिल, इसमें से एक कैंसिल, दो ये कैंसिल बेटा, तो ये आएगा ऊपर और बाय नीचे क्या आएगा? 3, 1 2 R 3 3 तो कितना है? R3। So what is the equivalent resistance here? That is R by 3. Therefore RP is equal to R by 3. That is the answer of the question. Guess the question is, it is not tough, but you have to guess the questions here. देखो बेटे क्या इसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? सिमेट्री वाले क्वेश्चंस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं लेकिन बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं लेकिन आसान है। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगा अगर यहाँ टाइम मिला तो बेटा, लेकिन टाइम बहुत कम है इस वक्त, तो अभी भी थोड़ा टाइम है, तो आई विल ट्राई टू फिनिश वन मोर क्वेश्चन हियर। अगर बेटा मैं यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाऊंगा बेटा आपके लिए, देखो क्या है यहाँ, तो डियर स्टूडेंट्स टाइम खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू। टाइम खत्म हुआ चाहता है, ओके नाइस डियर।